There is always this one phase of 15, 20, 25 years when the country grows faster than what it has grown. Nobody wants to become rich over 30 years. Everybody wants to be rich in the next 30 days. सोशल मीडिया में बहुत लोग आके बहुत कुछ बोलते हैं. इससे क्या है कि लिसनर या व्यूअर है उसके ऊपर एक अलग लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोड आ जाता है कि भाई किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने, क्योंकि ये तो इधर अवेलेबल तो सब कुछ है, लेकिन हु इज द राइट पर्सन. So first of all, thank you Ashish for giving us time, and through this conversation, many of our investors will really get benefited. And I've heard you many times, outspoken speaker and amazing orator you are. Starting with a very basic question: is that India is in this Amrit Kal right now, and you all talk of aspiring India, growing India. So I'm like, in your perspective, how do you see India growing over this Amrit Kal? See, actually क्या होता है कि जैसे when you say अमृत काल, right, what are the tenets, like what do we mean by अमृत काल? Basically ऐसा देखा गया है that over the history in the journey or economic journey or development of any country, there is always this one phase of 15, 20, 25 years when the country grows faster than what it has grown in the past, when there is a disproportionate growth, or there is a period which is a crunch period in terms of expansion. And generally it has been seen that this is the phase when the country is at its productive best and where the economic output rises very fast. A lot of people come out of poverty. Per capita income rises disproportionately compared to what it has done. And why would this happen? Why am I saying that there will always be just one period of 20-25 years? And why the government also calls it Amrit Kal? The reason is because this period typically coincides with a period when the people in the country are at their productive best. Now, if you see, say, productivity is always defined as GDP growth, right? And in simplistic terms, like I am not an economist, but in simplistic terms, growth is always population multiplied by productivity. Right. मतलब कितने लोग हैं और कितना production करते हैं. Now, population तो है हमारे पास, but when you see productivity, if you look at it, you will realize that the biggest input or the biggest driver of productivity is the age of the people. So simplistically put, if you see 15-20 years back in India, most people were kids. Today, if you see in India, most people are coming of age. They are coming in their youth. So it means that for the next 15-20 years, we will have the highest number of people in the world who are at their productive best, who are actually in their youth. Okay, mid-30s or... Yes, mid-30s, So, and today if you see what people don't realize, ये population की बात होती है, but people don't realize कि India में 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, कोई सा भी आप टेक एनी एज, इन एवरी एज इंडिया में देर आर 1.25 करोड़ से लेकर के 2.25 करोड़ लोग. मीनिंग इन यूके देर आर 6 करोड़ पीपल, इन ऑस्ट्रेलिया देर आर 2 करोड़ पीपल, राइट. इन इंडिया देर आर 2 करोड़ 22-year-old पीपल. Okay. So you can imagine. Right. So what happens is that in the next 20-25 years, we will end up being the largest consumer force and the largest labor force, because in any economy, बच्चे जो होते हैं वो इकोनॉमिक टर्म्स में प्रोड्यूस कुछ नहीं करते हैं और उनका कंजम्पशन भी वो खुद नहीं डिसाइड करते हैं. अच्छा, बुजुर्ग भी जो होते हैं वो भी इकोनॉमिक टर्म्स में टू द एक्सटेंट दैट मोस्ट ऑफ देम आर रिटायर्ड एंड दे कैन नॉट डू लेबोरियस वर्क, तो उनका भी इकोनॉमिक आउटपुट ज़्यादा नहीं होता है. और अक्सर देखा गया है कि बुजुर्गों में कंजम्पशन जो है वो उनकी फैमिली से डिटरमाइन होता है. Right. सो इन एनी इकोनॉमी और एनी फैमिली व्हाट विल हैपन इज दैट द कंजम्पशन एंड द प्रोडक्शन both are driven by people who are 20, 30, 40, 50-year-old. Right. And in India, maximum number of people will be in that age bracket in the next 20-25 years. And for us, it is happening at a period when world over, most countries which are, big in economy, they all are aging. Aging, yes. Yes. So, जब दूसरों की उम्र बढ़ रही है, तब हम लोग जवानी में आ रहे हैं. And we are not small bunch of people, we are 140 crore. 140 करोड़ में से अगर 70, 80, 90 करोड़ जवानी में है, तो you can imagine what Yes. type of propulsion it will have in Yes. consumer as well as labor. So yeah, I think that is the main driver. That is the reason for excitement. That's true. That's true. Just few days back, I was in Georgia country, and the entire population of that country was 37 lakh. So, and I was like, I asked her, इतना तो हमारी कॉलोनी में हो जाते हैं. So you are right, absolutely true. So now during this Amrit Kal, and there are investors who are new, they're coming to the capital market for the first time. So what's your advice to investors in this Amrit Kal? See, I think investors के लिए सबसे ज़्यादा important क्या होता है कि it's but natural. I can understand why everybody wants to make money fast. Nobody wants to become rich over 30 years. Everybody wants to be rich in the next 30 days
और एट बेस्ट इन द नेक्स्ट 30 वीक्स, राइट. करेक्ट. एंड होता क्या है कि ये जो नीड फॉर स्पीड है या जो भी चीज़ जल्दी करनी है या ओवरनाइट रिच बनना है, हाँ. उसमें जो गलतियाँ होती है उसमें उसके बाद क्या होता है कि लोग पार्टिसिपेट करने के काबिल ही नहीं रहते हैं. सी वंस यू मेक सर्टन बिग मिस्टेक्स लाइक यू बोरो एंड इन्वेस्ट, यू आर ट्रेडिंग FNO, यू आर टेकिंग रिस्क्स विच मेक्स यू लूज मनी, right? Then you have negative experience. Then you're not able to engage with the market, or your family might tell you कि भाई ये आपके बस का नहीं है, आप ये मत करो, right? So what happens is that actually, like I said, that we all are going to play a big role in our economy growing, right? तो contribute तो करेंगे हम आर्थिक व्यवस्था में, लेकिन participate कैसे करेंगे? Participate करने के लिए invest करना ज़रूरी है, और invest करने के लिए discipline, long term, consistency, ये सब important है. और ये डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म और कंसिस्टेंसी का दुश्मन इज गेट रिच क्विक. सो आई थिंक आवर एडवाइस टू पीपल, और ये बहुत मुश्किल है, बोलना आसान है, करना मुश्किल है, और एडवाइस टू पीपल इज द सेम थिंग कि भाई यू इन्वेस्ट कंसिस्टेंटली, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म. एंड क्या है जो लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं भाई इतना लॉन्ग टर्म नहीं है. इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग फॉर 15-20 ईयर्स तो पहले 10 साल ही आपको लगता है कि अरे भाई बहुत ड्रैग हो रहा है, उसके बाद तो यू नो द कॉर्पस जस्ट स्टार्ट्स टू compound. So I think that I think consistency is very very important, discipline is important, and last thing I would say कि भाई जितना भी कर सको बस start करो. Right. Starting is important. So basically बहुत अच्छा लगा ये सुन के, just don't be the labor, be the investor and be the get money out of that. Yeah, absolutely. Just don't be a labor part of it. हाँ मतलब be a earner part of it. Absolutely. We are not here to just amplify all the slogans. We are here to participate. Participate. Right? Yeah, contributing is one thing. Participating is another. Yeah. Exactly. So wonder. And you have seen different market cycles. Your career started in late 1990s, Yes, right? yes. Your career started that time, and you have seen 2004 market going all the way up, 2008 boom and the bust, and COVID and government changing and all those things, right? Multiple wars have happened. Now, what is your observation of this investor and the behavior in various times that you've seen? So I think generally 2-3 things I have noticed that investors क्या होता है कि जैसे ये हर जगह आपने स्लोगन लिखा हुआ देखा होता है ना, लाइक वॉरेन बफेट इज कोटेड मल्टीपल टाइम्स दैट बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी. सो व्हाट हैपेंस इज दैट दिस इज मोस्ट ऑफन कोटेड. आप कहीं पे किसी के घर चले जाइए, किसी ऑफिस चले जाइए, कहीं पे सॉफ्ट बोर्ड पे लिखा होगा, कहीं किसी किताब में लिखा होगा, किसी ने अपने फ़ोन के स्क्रीन में लिखा होगा. इट इज़ एड नॉजियम रिपीटेड एंड कोटेड एवरीवेयर. मैं हमेशा लोगों को पूछता हूँ कि भाई जब ऐसा लिखा जाता है बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी fearful when others are greedy, तो चलो मेरे को बताओ अदर्स कौन है, who is the other? So क्या होता है कि लोगों को लगता है कि बस ये तो एक स्लोगन है, राइट? वो अदर्स तो बफेट साहब तो है नहीं, उन्होंने बोला था तो उनके बारे में तो नहीं बोला था. तो अदर्स तो हम ही लोग हैं, जो हमको सुबह आईने में दिखता है वही अदर्स है, करेक्ट? So I think what happens is that to be successful, I have seen that people always get carried away with the flow. They are greedy when others are greedy and they are fearful when others are fearful. अगर जैसे मार्च 2020 आया, तो मार्च 2020 जब आया तो बाजार 40% गिर गया. हर किसी को बेचना है, किसी को फ्यूचर दिख नहीं रहा है. सबको लगता है भाई कोविड में 5% लोगों की जानें चली जाएंगी, वैक्सीन तो 10 साल में आएगा, हम ही लोग डायनासोर बनने वाले हैं, पता नहीं दुनिया का क्या होएगा. सो एवरीबडी सेलिंग एंड गोइंग आउट. अब आप लॉजिकली सोचो कि भाई कोविड में जब बाजार 40% गिरा एक महीने में, तो आप सोचो कि कौन खरीदेगा, क्योंकि वही तो मौका था टू बी ग्रीडी. कोई तो खरीद रहा था, तो हु विल बाय? तो समझने वाली बात है कि भाई जब सबको लगता है दुनिया खत्म होने वाली है, तो खरीदने तो वही आएगा जिसके दिमाग में एक कहीं खिड़की खुली है कि भाई लग तो रहा है खराब है, बट ह्यूमन बीइंग्स बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल है. तो इसमें से कुछ ना कुछ तो निकलेगा, बिकॉज द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इज के भाई ह्यूमन बीइंग्स खत्म नहीं हुए, राइट? तो किसी के दिमाग में एक खिड़की खुली होगी, वही खरीद पाएगा ना. देन आप सोचिए कितने फनी है लोग. उसके 1.5 साल बाद अक्टूबर 2021 में बाजार 19,000 न्यू हाइज बनाने लगे. मतलब थोड़े समय पहले ओनली सेलर्स, डाउन सर्किट. 1.5 साल बाद सब बायर्स है, 19,000 हो गया. तो बोल रहे भाई ये मार्केट न्यू हाई क्यों बना रहे? तो बोले हमारा अमृतकाल आने वाला है. बोले यार तुम कितने फनी हो मेरे भाई, थोड़े समय पहले तुम बोल रहे थे हम ही सब डायनासोर मरने वाले हैं. हाँ, अभी तुम बोल रहे हो हमारा अमृतकाल आने वाला है. अच्छा, जब अमृतकाल अक्टूबर 21 में जब पीक आया तब कौन बेचेगा? अमृतकाल की बात हो रही है तब कौन बेचेगा? वही बेचेगा ना कि भाई जिसके दिमाग में खिड़की खुली है कहीं पे कि हाँ भाई अमृतकाल आने वाला है, सही है, लेकिन कल नहीं आने वाला है ना.
कल सुबह तो नहीं आएगा ना, गवर्नमेंट भी बोल रही है 2047 में आएगा, करेक्ट. सो पॉइंट इज दैट फॉर सक्सेस यू हैव टू हैव स्लाइटली डिफरेंट थिंकिंग, यू हैव टू बी स्लाइटली कॉन्ट्रा और स्लाइटली मतलब थोड़ा भेड़ चाल से अलग अगर आप कुछ सोच सकते हैं थोड़ा सा, सही बात, राइट, तो बहुत सक्सेसफुल बन सकते हैं. और इसीलिए ये स्लोगन लिखा गया था. उसके वो सब कोट भी करते हैं लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है. तो ये मैंने देखा है कि कभी चेंज ही नहीं हुआ है. और इसीलिए क्या होता है कि भाई अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज भी ऐसे लोगों को दिया जाता है जो ह्यूमन बिहेवियर स्टडी कर रहे हैं. जैसे डैनियल कैनेमैन है, रिचर्ड थेलर है. ये वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट नहीं है जो इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, करेंसी की बात कर रहे हैं. बिहेवियर की बात, दीज आर बिहेवियर. तो इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज बिहेवियर स्टडी करने वाले को क्यों मिलता है? क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स में सक्सेस के लिए बिहेवियर कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है. और हम लोग जब से बाजार देख रहे हैं हमने देखा है कि लोग अपना बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, भेड़ चाल से निकल नहीं पा रहे हैं. जो भी भेड़ चाल से थोड़ा निकल के हट के काम करेगा, they would be most successful. They will be, doing better than their peers. Right. And as Shiv Khera quoted, winners don't do different things. They just do it differently. तो आप जो बोले थोड़ा अलग करके, अलग कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा लीक से अलग हट के सोचने की बात है कि ऐसा हो क्यों रहा है. Yes. बहुत सही. एंड आई रियली अप्रिशिएट द काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी आप जो अपनी भाषा में लाते हैं. आई थिंक आई एम श्योर हमारे इन्वेस्टर्स को जो आपको सुन रहे हैं उनको बहुत अच्छा लगे. वो शायद होता है ना कि कुछ कई बार होता है कि आप कड़वी गोलियां जो होते हैं जब उसको कूट कर शहद में डाल के पिला देते हो तो आदमी वो बच्चा ले लेता है. तो आपकी शायद जो बातें हैं वो क्या, वो दवाई को कूट कर शहद में डाल के घुल ओके ले बटे पी ले, वो ले भी लेता है. तो बहुत जरूर आपका समझाने का तरीका, आई एम रियली अप्रिशिएट दैट. Thank you. नाउ हम आजकल जब भी म्यूचुअल फंड की बात करते हैं उससे पहले एक सिप वर्ड आ जाता है कि, और कई बार निवेशक ऐसे कहते हैं नहीं जी मुझे म्यूचुअल फंड नहीं करना, मुझे सिप करनी है. ये तो म्यूचुअल फंड से ज़्यादा वो सिप फेमस हो गया है नाउ, और सिप से वो अपनी वेल्थ अब क्रिएट भी करना चाहते हैं. सो व्हाट इज़ योर एडवाइस हियर अगेन कि भाई वो सिप जो है उसको कैसे यूज़ करना चाहिए, उसको अपनी वेल्थ क्रिएशन इस अमृत काल में कैसे निवेशक उस सिप के माध्यम से क्या कर सकते हैं? See, actually SIP is a facility और a feature. तो दो चीज़ें हैं. देखिए, एक तो क्या है कि इक्विटी मार्केट जो है, जितने लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह जिसने पढ़ा है, हम सब लोगों ने एक वो जो करंट होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट, जो AC करंट हम बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट आपने देखा होगा कैसे एक साइन वेव की तरह चलता है. उसमें ऐसे क्रेस्ट एंड ट्रफ इस तरीके से चलता है और बीच में एक 0 डिग्री सेंटर लाइन होता है. तो फिजिक्स में ऐसे प्लॉट करते हैं कि भाई 0 डिग्री सेंटर लाइन है और ये करंट इस तरीके से जाता है, उसके क्रेस्ट एंड ट्रफ होते हैं. तो स्टॉक मार्केट का भी चलन जो है वो एग्जैक्टली एक करंट के साइन वेव की तरह है. लेकिन स्टॉक मार्केट की ब्यूटी क्या है कि जो सेंटर लाइन है ना वो 0 डिग्री लाइन नहीं है, वो 45 डिग्रीज इंक्लाइंड है. तो इट विल गो लाइक दिस, इट इज डायरेक्शनली गोइंग अप बट विथ वेव्स. तो इंट्रिंसिकली स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है. अब वॉलेटिलिटी में बेनिफिट करने का जरिया ये है कि भाई आप आज या कल या परसों या अगले साल नहीं, आप कंटिन्यूसली हर लेवल पे पैसा लगाते चले जाओ. कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा, आप एवरेज करोगे और लंबे अरसे में क्योंकि वो वेव ऊपर ही जा रहा है तो आपका काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है. और दूसरी चीज़ ये है कि भाई स्टॉक मार्केट को साइड पे रखिए. वैसे भी हम सब जिस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनकी हर महीने की कुछ ना कुछ आमदनी होती है, और अगर सही काम करते हैं तो आमदनी से खर्चा कम ही होएगा, तो कुछ ना कुछ बचाएंगे. तो एनीवे फॉर एवरीबडी इट इज़ possible to save on a monthly basis only, right? And then only they'll have the discipline to set something aside. And plus सोने पे सुहागा, because स्टॉक मार्केट में anyway इन्वेस्ट करने का वही सही तरीका है कि भाई आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते चले जाओ. Right. So I think SIP is a beautiful facility which combines कि भाई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का सही तरीका क्या है और आपके आमदनी का कैश फ्लो क्या है. राममिलाई हो रही है, एकदम राममिलाई. मैरिज बोथ द थिंग. Yes. सो वैसे ही करना चाहिए. इट इज़ द राइट वे टू डू इट. और आप देखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा आजकल सब SIP के तौर पे ही कर रहे हैं. राइट. और आजकल ये एक अलग चीज़ सुनने को आ गई है, SWP, और ये बड़ा फेमस हो गया है और लोगों को लग रहा है कि ये SIP से भी एक अच्छा टूल हो गया, इससे और ज़्यादा पैसे बन जाते हैं. और मैं एक सेशन ले रहा था वहाँ, एक बहुत ही जो जैसे कि जिसने अब तक निवेश भी नहीं किया है उसने मुझे पूछा अब SIP नहीं, मुझे SWP समझिए, शायद उसमें ज़्यादा पैसा बनता है. सो नाउ व्हाट इज दिस SWP ऑल अबाउट, और
किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? सी इट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो अगर आप देखेंगे इट्स अ मिरर इमेज ऑफ SIP। क्योंकि SIP में क्या हो रहा है कि भाई आप हर महीना पैसा जोड़ते जा रहे हैं, एक अपना कॉर्पस बिल्ड कर रहे हैं। और SWP सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है वो मैंने बोला उसका मिरर इमेज है। ऑपोजिट क्यों है कि भाई जब आपका अल्टीमेटली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी समझो बंद हो जाती है, आइदर रिटायरमेंट है या इन्होंने कमाना बंद कर दिया है, तो अब वो अपने सेविंग्स के ऊपर निर्भर हैं अपना डेली लाइफस्टाइल के लिए। सो बेसिक पॉइंट क्या है कि भाई जब एक कॉर्पस जमा हो जाता है तो पहले लोग क्या करते थे, जैसे पोस्ट ऑफिस में पैसा डालते थे, मंथली इंटरेस्ट मिलता था, बैंकों में डालते थे पैसा और उसमें से पैसा उनको इंटरेस्ट मिलता था। तो अब क्या हुआ है कि जितने भी फिक्स्ड इंटरेस्ट के जरिए हैं वो सबका रेट काफ़ी गिर गया है और मंथली इंटरेस्ट की स्कीम्स जो है उसका रेट और भी ख़राब हो गया है। प्लस सारे के सारे इंटरेस्ट बेरिंग जितने भी है, FD है, बॉन्ड्स हैं, वो सबके ऊपर टैक्सेशन भी काफ़ी एडवर्स हो गया है। तो अब जो लोग पहले मंथली इनकम के ऊपर सर्वाइव करते थे उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड में एक बढ़िया फैसिलिटी है कि आपने जितना भी अपना कॉर्पस इकट्ठा किया है वो पूरा का पूरा कॉर्पस आप एक तरीके के म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड है, मल्टी एसेट फंड है, जो कोई सा भी हाइब्रिड फंड जो भी एडवाइज़र या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बताएगा, पूरा कॉर्पस एक तरीके के फंड में आप जमा कर दीजिए और फिर आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। समझिए हमको लगता है कि भाई लंबे अरसे में ये फंड की एवरेज रिटर्न 8-10% के ऊपर है, तो कैपिटल को डिसरप्ट नहीं करिए। अगर आपको लगता है कि ये फंड की लॉन्ग टर्म एवरेज 8-10% की है तो मंथली आप समझो 0.7 या 0.8 या 0.6% ले लीजिए। 0.6% लेंगे तो सालाना 7.2% होएगा। तो मंथली 0.6% का आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई 1 करोड़ रुपया हमने डाला है तो हर महीने 60,000 रुपया आप हमको विड्रॉ करके हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दो। अब अगर वो फंड 8-10% के रेट से चलता है तो वो 1 करोड़ की जो कैपिटल है उसको कभी टच नहीं करेगा। जो उसका गेन है उसी में से 0.6% हर मंथ निकाल के विड्रॉ होते रहेगा। तो SWP एक अच्छा जरिया है कि भाई म्यूचुअल फंड में से आप कैसे मंथली इनकम में इसको कन्वर्ट करें। लेकिन शर्त यह है कि भाई पहले आपने एक कॉर्पस तो बना लिया, एक कॉर्पस बनाया होना चाहिए। मतलब SIP हैज नथिंग टू डू विद SWP। ओके, SIP तो वो करता है जो कॉर्पस इकट्ठा कर रहा है और SWP वो करता है कि जिसने कॉर्पस इकट्ठा कर लिया अब उस कॉर्पस के बलबूते पे वो अपना डेली लाइफस्टाइल चला रहे हैं। सो दे आर डिफरेंट फैसिलिटीज मेंट फॉर डिफरेंट पीपल एट डिफरेंट लाइफ स्टेज कंप्लीटली। एक जवानी के लिए है और एक कहीं ना कहीं एक लेटर स्टेज और लाइफ के लिए। तो एक पैसे पहले जोड़ना है उसके बाद विड्रॉ करना है। तो ये जो कई बार यंगस्टर आते हैं बोले नहीं मुझे SIP नहीं SWP करनी, उनको लगता है तो वो शायद वो अगेन इट्स गोइंग बाय रॉन्ग इंटेंशन, उनको गलत उनको हो जाए। तो ये जो उनको समझ में आती चीज़ें आती हैं, ये सब बातें वो सोशल मीडिया से कई बार निकल के आती है। और हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया है ना हमारी हर लाइफ में हर चीज़ को प्रभावित करने लग गया है। रिलेशनशिप में हो, मेडिसिन में हो, पॉलिटिक्स में हो, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कर ले, आप बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लग गया हमें। तो इस पूरे सोशल मीडिया के इस ऑरा में हाउ डू यू टेक सोशल मीडिया एंड व्हाट्स योर एडवाइस टू इन्वेस्टर्स नाउ? सी हम लोग भी, जैसे मैं भी सोशल मीडिया पे प्रेजेंट हूँ, जैसे अगर आप देखें ट्विटर है, लिंक्डइन है, प्रेजेंट हूँ मैं। लेकिन मैं नॉर्मली प्रेजेंट हूँ वहाँ पे लोगों के साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए, क्वेरीज का जवाब देने के लिए, या कभी कोई चीज़ें ऐसी हो रही है करंट अफेयर्स में जिसमें अगर हमारा कोई अपना ओपिनियन या अपना कोई व्यू या कोई एक्सपीरियंस हम शेयर करते हैं, या फिर जनरली रीड करने के लिए, न्यूज़ कंज्यूम करने के लिए। तो सोशल मीडिया अपनी जगह पे बहुत ही यूज़फुल है क्योंकि आपको बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो बहुत ही क्विकली समझ में आता है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक नेगेटिव्स भी है कि भाई इसमें सब लोगों को एक इवन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, कोई भी आ सकता है, अपना पॉइंट रख सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि भाई इसका नेगेटिव ये है कि भाई जिसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता है वो भी अपना व्यू रख सकता है। तो जो रीडर है उसको देखना पड़ेगा भाई किसकी क्या क्रेडिबिलिटी, किसका क्या बैकग्राउंड, क्या ट्रैक रिकॉर्ड, वो देखना पड़ेगा कि भाई कोई कुछ बोल रहा है तो उसको फेस वैल्यू पे लिया जाए कि नहीं। क्योंकि अब क्या है कि इसमें कौन कितने इम्प्रेसिवली बात कर रहे हैं। जैसे समझो अभी हम बात कर रहे हैं, राइट, तो हमारा भी प्रोफाइल किसी ने जाके चेक करना चाहिए सही बात कि भाई ये इतना बातें कर रहे हैं लेकिन पता है कि नहीं पता है। हाँ। तो यू आर काइंड इनफ टू से कि भाई समझो मैं 25 साल से सेम काम कर रहा हूँ, मैं भी आपको जानता हूँ, आप वेल्थ मैनेजर है, एडवाइजर है इतने साल से। तो पॉइंट ये है कि भाई कौन क्या बोल रहा है, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, दूसरा उसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम लोग सब लोग तो सोशल मीडिया पे कमाने के लिए नहीं आते हैं। हाँ। हम तो एज अ प्रोफेशनल अपना काम कर रहे हैं।
लेकिन कई लोग सोशल मीडिया पे हैं जो कमाने के लिए, जैसे मैंने देखा है कि कई लोग क्या करते हैं कि वीडियोस डालते हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। अब समझने वाली बात क्या है कि वो वीडियो के ऊपर 1 मिलियन व्यू आ गए, तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो उनको पे करेगा। अब आप समझिए कि भाई इनका कमाने का जरिया इन्वेस्टमेंट नहीं है, कमाने का जरिया इन्वेस्टमेंट के बारे में वीडियो बना के उसको कमर्शियलाइज। सही बात, सही बात। सो क्या है कि भाई जो डॉक्टर है जो अपनी दिनचर्या के लिए सर्जरी करता है, और वो डॉक्टर जो सर्जरी कैसे करना चाहिए उसका केवल वीडियो बनाता है, हाँ, इसमें फर्क है, बहुत अंतर है, क्योंकि एक लाइव ऑपरेशन थिएटर में होगा और एक थियोरेटिकल वीडियो रिकॉर्डिंग होएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बहुत सारी बात करेंगे, हाँ, और अगर आपको कोई आगे बोलेगा कि आशीष जी आप अपना वेल्थ मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड, तो आप 20 साल का हिस्ट्री बताएंगे कि भाई देखिए ये क्लाइंट का हमने इस तरीके से निवेश किया तो उसका ये ट्रैक रिकॉर्ड बना। सही बात। या हम अपने म्यूचुअल फंड का ट्रैक रिकॉर्ड बताएंगे, भाई देखिए हम ये इन्वेस्ट कर रहे थे। तो क्या है कि सोशल मीडिया में बहुत लोग आके बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन सबकी क्रेडिबिलिटी, ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडेंशियल्स, इससे क्या है कि जो लिसनर या व्यूअर है या जो रीडर है उसके ऊपर एक अलग लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी और लोड आ जाता है कि भाई किसकी बात सुने किसकी बात नहीं सुने, क्योंकि ये तो इधर अवेलेबल तो सब कुछ है, लेकिन हु इज द राइट पर्सन, हु इज नॉट द राइट पर्सन, कौन से हेतु से बोल रहा है, किसका रेवेन्यू मॉडल क्या है। जैसे हम तो अपना फंड मैनेज करके कमा सकते हैं, वीडियो बना के वीडियो बेच के तो कमा नहीं सकते हैं, आप भी नहीं कर सकते, पर्पस ही नहीं है, राइट। सो आई थिंक ये सब चीजें कॉम्प्लिकेशन थोड़ी आ जाती है। एंड लास्टली क्या है कि भाई कितनी बढ़िया तरीके से आप प्रेजेंट करोगे उससे लोग इंप्रेस हो जाते हैं। अभी वो सो ये थोड़ा तो दिखावा कहीं ना है कहीं ऐसा इसमें। लग रहा है कि जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है वो शायद इतना बहुत अच्छे प्रेजेंट नहीं कर पाए, उसको काम आता है। काम आता है। और जो शायद बता रहा है कि कैसे करना चाहिए उसे प्रेजेंट ज्यादा कर पा सकता है, तो सोशल मीडिया में वो जो बता रहा है वो शायद ज्यादा दिख रहा होता है। मे बी दैट्स हाउ यू प्रेजेंट थिंग्स। सही बात कह रहे हैं। तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला बातचीत करते करते। एंड इन बिटवीन आपने कहा कि कई जगह मैंने देखा है, समझा है, पोस्टर्स लगे होते हैं पर वो रेलिवेंट नहीं होते हैं या लोग कितना फॉलो करते हैं। तो इसी तरह हमने एक वर्ड सुना है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सोशल मीडिया पे खूब चलता है, लोग भी समझते हैं हाँ आशीष जी हमें तो पता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। तो एक्चुअली पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती क्या है और उससे लोगों को फायदा कैसे होगा, एक्चुअली वो नहीं समझ में आता लोग। सो हम लोग प्रैक्टिकल इसका एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, हिस्ट्री और डेटा देखा है हमने कि कई जगह पे ना सेंसेक्स की हिस्ट्री लोग 1979 से गिनते हैं, लेकिन एक्चुअली वो नहीं गिनना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि 1991 से हम गिनते हैं, क्योंकि 1991 में स्टॉक मार्केट और सारी इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद सारे सेक्टर्स ओपन हुए। तो एक डेटा है, क्लियर है कि भाई 32 साल में जिस रफ्तार से इंडिया की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ग्रो हुई है कि 12.5% से नॉमिनल जीडीपी, मतलब 6.5 से 7% जीडीपी, 6% महंगाई, 12.5% नॉमिनल जीडीपी ग्रो हुई है। सेंसेक्स की कंपनियों का अर्निंग पर शेयर है ना, वो भी 12.5% लगभग ग्रो हुआ है, और सेंसेक्स की रफ्तार 14% है, मतलब 11.5-12% सेंसेक्स और 1.5-2% डिविडेंड, तो 14% की रफ्तार से सेंसेक्स कंपाउंड हुआ है। वे आशीष जी समझने वाली बात क्या है कि 14% से कुछ कंपाउंड हुआ है, मतलब हर 5 साल में डबल हुआ, डबल हो गया, राइट। अभी समझो कि हम ये बात कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, और मैं घर जाता हूँ अपनी मदर के पास, बोलता हूँ कि मम्मी मैं सुना कि भाई अगर 1991 में ₹1,00,000 भी डालते तो हर 5 साल में वो डबल हो जाता, राइट। तो 6 बार डबल होता, कुछ 30 साल में 30-32 गुना हो जाता। तो अगर मैं घर जाके पूछूँ अपने पेरेंट्स को, आप पूछें कि भाई आपके पास ₹1,00,000 नहीं था क्या यार, मतलब अगर आप तभी ₹1,00,000 लगा देते तो आज हमारा भी एक इनहेरिटेंस होता। सही बात है। ऐसा मैं मेरी मम्मी को पूछ सकता हूँ, तो मेरी मदर क्या जवाब देगी? पहले तो शायद चांटा मारेगी, बट अदरवाइज क्या बोलेगी? बोलेगी बेटा ये तुम जो प्रोग्राम कर रहे हो तब नहीं होते थे प्रोग्राम, हमको क्या पूछ रहे थे? तो वॉरेन बफेट कौन है किसी को पता नहीं था, क्या कंपाउंडिंग। लोग बोलते 10,000 का विप्रो लेने का, विप्रो तो तभी तेल बनाता था, हमको क्या पता यार क्या करना है, राइट। तो जो भी मेरी मदर एक्सप्लेनेशन देगी मेरे को मानना पड़ेगा, क्योंकि तभी अवेयरनेस नहीं था, राइट। अभी आप समझो मेरा बेटा 5 साल का है, हाँ, तो अपने को ये समझना चाहिए कि भाई हमारे पिछला जो जनरेशन है वो तो नॉलेज नहीं है, पैसा ही नहीं है, मतलब ₹1,00,000 था किसके पास 35 साल पहले? तो नहीं था। तो नॉलेज नहीं है, पैसा नहीं है, ये इस तरीके का मार्केट, ये रेगुलेशन, ये टेक्नोलॉजी, ये कुछ नहीं था। लेकिन सेंसेक्स तो हर 5 साल में कंपाउंड हुआ ना। सही। जब इंडिया में लोग बच्चे थे, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं था, फिर भी 5-5 साल में सेंसेक्स पैसा डबल किया है, राइट। तो आने वाला 25-30 साल तो अपना और बढ़िया होने वाला है। तो अभी अपने को समझना चाहिए कि कंपाउंडिंग क्या है, राइट। लोग क्या कंपाउंडिंग बोलते हैं, गिनते नहीं है।
तो अभी समझो कि मैं तो मेरी मदर को ये सवाल पूछ नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे को मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई मेरा बेटा मेरे को क्या सवाल पूछेगा। सही बात, वो बोलेगा भाई तू तो गाँव गाँव में जाके सबको भाषण दे रहा था, तूने क्या किया, तू बता ना, उसका हिसाब दे। सही बात। राइट। तो अभी समझो कि अपन गिनते हैं, अभी समझो कि एक फोलियो है मेरे पास, उसमें समझो 1 करोड़ रुपया है। तो मेरा बेटा 5 साल का है, वो 10 साल का होएगा तो कितने का हिसाब पूछेगा? 2 करोड़। 15 साल का होएगा तो हिसाब मांगेगा 4। 20 का होएगा तो 8। 25 का होएगा तो 16। वो 30 साल का होएगा ना, तो बोलेगा बेटा वो फोलियो में पापा 32 करोड़ किधर है? बोलेगा पापा आपका मैंने आशीष अंकल के साथ वीडियो देखा है, सही बात, बहुत ज्ञान दिया आपने, बहुत हिसाब लगाया, अमृतकाल वगैरह, अभी बताओ किया क्या है। राइट। राइट। तो मेरा बेटा 30 साल का होएगा ना, तो 32 करोड़ का तो हिसाब वो हक से मांगेगा मेरे से, और मैं उसको बोल भी नहीं सकूंगा कि बेटा बात तो सही है, इंटेंशन तो था, लेकिन पता है उस साल ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बने तो हम सब घबरा गए, मार्केट से निकाल लिए। तो बोलेगा भाई ये सब ज्ञान नहीं चलेगा, तुम बताओ तुमने क्या किया। सही बात है। सो ये कंपाउंडिंग है ना, लोग बात करते हैं, गिनते नहीं है। जैसे एक अकबर बिरबल के जमाने का जो है वो स्टोरी है ना, राजा किसी से प्रसन्न होता है और बोलते बेटा मांगो क्या हिसाब, क्या इनाम चाहिए? बोलते राजा जी मेरे को कुछ इनाम नहीं चाहिए, आप एक काम करो, शतरंज का बोर्ड निकालो, चेस का बोर्ड निकालो, और हर ब्लॉक पे है ना 1 राइस का दाना रखो। शर्त केवल इतना है कि पहले ब्लॉक पे 1 दाना रखा तो दूसरे पे 2 रखना, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, जैसा मैंने गिना। बोलते ये तो बहुत सिंपल है। सही बात। ठीक है बेटा अपन रख देते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32। राइट। स्टोरी गोज दैट बाय द टाइम ही फिनिश्ड द 64th ब्लॉक ऑन द चेस बोर्ड ही बिकेम कंगाल। उसका पूरा साम्राज्य लूट गया, इतना राइस उसको वहां पे देना होगा। राइट। तो कंपाउंडिंग लोग बोलते हैं, समझते नहीं है, इट कैन बी लाइफ चेंजिंग। और ये कंपाउंडिंग है ना, ये हम लोग का ड्यूटी हमारे तरफ नहीं है, ये आने वाले जनरेशन के लिए है। सी इक्विटी इज फॉर नेक्स्ट जनरेशन, इससे लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। इसीलिए मैंने जोक में बोला कि अगर मैं मेरे पेरेंट्स को पूछता तो भाई हमारी भी लाइफ चेंज हो जाती, लेकिन चलो तब तो नहीं पता था, इट्स अ फैक्ट। तब वो माहौल ही नहीं था, वो कैपेबिलिटी नहीं थी। लेकिन अभी है, तो हम अपने आने वाले जनरेशन को क्या हिसाब देंगे और क्या जवाब देंगे कि भाई पूरा इंडिया तो निकल गया जहां निकलने का था, जो अमृतकाल तुमने बोला वो सब हो गया, लेकिन तुम तो वहीं रह गए। सो इट्स ए वेरी पावरफुल कंसेप्ट, वी हैव टू लीवरेज इट। इट कैन एक्चुअली चेंज योर नेक्स्ट जनरेशन इफ यू प्लान फॉर इट एंड थिंक लॉजिकली। और एक्चुअली मैं आशीष जी, यू जस्ट टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग, आपने अपने बच्चे की एक बात करी, मैंने कहीं देखा है, जब मैं लोगों से मिलता करता हूँ, वो एक्चुअली में पैसा बचाना छोड़ो, बच्चों और अपनी खुद की इच्छाओं पे ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कि वो बच्चे को शायद 30 साल बाद खर्चे ज़्यादा करने की आदत डलवा रहे हैं। द वे वी आर सीइंग, वो तो आई थिंक सो वो जो SIP आपने जैसे पहले बोला, और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, अगर हम SIP और पावर ऑफ कंपाउंडिंग को लेके चले तो शायद पता नहीं कहाँ से हम बच्चों को भी क्या शिक्षा दे पाएंगे, कहाँ से का पैसे जोड़ भी लेंगे। तो इट्स अनदर अमेजिंग थिंग यू हैव टोल्ड। सो आपने अपने वाइट टॉक में और उससे पहले भी आपके बहुत एक्सपीरियंस रहे, एंड जैसे कहते हैं कि ब्रेकफास्ट आप किसी फंड में से करते हो, डिनर किसी और फंड में से करते हो, तो जनरली एक फंड मैनेजर का क्या पर्सपेक्टिव होता है जब वो कोई इक्विटी में निवेश करते हैं, वो किस तरह सोचते हैं, उनकी बुद्धि कैसे जाती है? क्या फंड मैनेजर्स के लिए ना जॉब काफ़ी मुश्किल और चैलेंजिंग है, इसलिए क्योंकि सीधी सी बात है कि भाई जिसको कुछ भी नहीं पता है बाजार में, ऐसे तो आमतौर पे तो भाई लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं, बहुत कुछ सट्टा FNO बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों का वो बेंचमार्क या वो मापदंड नहीं है। फॉर एनी प्रोफेशनल फंड मैनेजर बेंचमार्क या मापदंड ये है कि भाई एक इंडेक्स है बाजार में, सेंसेक्स निफ्टी, तो पिछले 32 साल का जब मैंने हिसाब दिया, मैं बोला कि हर 5 साल में सेंसेक्स ही डबल किया है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स निकालेंगे तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स का परफॉर्मेंस तो उससे भी कई ज़्यादा परसेंटेज पॉइंट्स में है। तो फंड मैनेजर्स का जो थॉट प्रोसेस होता है, वो 2 चीज़ें मैंने देखी है बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़ ये है कि भाई जो इंडेक्स है, सेंसेक्स निफ्टी, जो भी इंडेक्स आप लेते हैं, इंडेक्स से बेटर किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक इन्वेस्टर अल्टीमेटली तो समझ जाएगा कि भाई अगर मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है तो मैं कम से कम इंडेक्स तो खरीद ही सकता हूँ। सो फंड मैनेजर को इंडेक्स से तो बेटर करना पड़ेगा। इससे एक जुड़ा हुआ कंसेप्ट ये है कि भाई कई बार इन्वेस्टर्स जब अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई बार जब शेयर बाजार के बारे में चर्चा होती है तो बात होती है स्टॉक पिकिंग की,
और अक्सर ऐसा जताया जाता है, पीपल गेट अ फीलिंग दैट अ पोर्टफोलियो इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ बेस्ट आइडियाज। लेकिन फंड मैनेजर का जॉब उससे ज़्यादा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि a portfolio is not a list of best ideas. A portfolio is all good ideas, but assembled as a basket in a way that it should outperform or do better than the benchmark. और खाली अच्छे स्टॉक खरीदने हैं और खाली बेस्ट आइडियाज खरीदने से आप बेंचमार्क बीट करोगे ऐसा गारंटी नहीं है, क्योंकि बेंचमार्क कैसा है, 500 स्टॉक का हमारा बेंचमार्क है, उसमें हर तरीके की कंपनियां हैं, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त दिखाती है, ऐसी भी कंपनियां हैं उसमें, कभी न कभी चल पड़ेंगी। तो बेंचमार्क को बीट करने के लिए साइंटिफिकली पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करना, इट गोज मच बियॉन्ड जस्ट बाइंग गुड स्टॉक्स और आइडेंटिफाइंग गुड आइडियाज। सो फंड मैनेजर्स जॉब इज क्वाइट चैलेंजिंग बिकॉज दे हैव टू बीट द बेंचमार्क, बीट कंसिस्टेंटली and ensure good investing experience. So Ashish ji, you spoke about fund manager, having, what's the outlook of fund manager. Now, जब हम निवेशक से बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि people at the other side of the table, distributors, manufacturers, fund managers, उनके पास एक्सपर्टीज है, उनको नॉलेज है, उनको मार्केट का पता है, उनको ट्रेंड्स पता होते हैं, तो वो कई बार मार्केट कैसा लग रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मार्केट डाउन होता है ऐसे पूछते हैं, पहले पैसे क्यों नहीं निकाले, या जब समय आएगा तब बता दीजिएगा बस डाल रहे हैं, और एसेंशियली व्हाट यू कॉल इट एज टाइमिंग द मार्केट। सो नाउ मतलब व्हाट्स योर एडवाइस टू देम व्हेन इट कम्स टू टाइमिंग द मार्केट? एक्चुअली मैं हमेशा बोलता हूँ कि जैसे हमारे काम में एक पर्क ये है कि पर्क्विजिट ये है कि भाई हम हर जगह ट्रैवल करते हैं, जैसे आपको मिलते हैं, अन्य दूसरे वेल्थ मैनेजर्स को कहीं मिलते हैं, कहीं क्लाइंट्स को मिलते हैं, तो जहाँ पे भी हम मिलते हैं ना, तो ये हमेशा का सवाल रहता है कि भाई फलाना हो जाएगा तो वो मार्केट में क्या होएगा, फिर हमारे पोर्टफोलियो में क्या होगा। जैसे पिछले थोड़े समय से लोगों का ये है कि भाई ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बनेंगे तो हमारे पोर्टफोलियो का क्या होएगा। उसके पहले लोग सोचते थे कि ये यूक्रेन को नेटो में ले लेंगे, रशिया वाले भड़क जाएंगे तो 3rd वर्ल्ड वॉर हो जाएगा क्या। उसके पहले लोग सोचते थे कि ये कोविड हो गया तो वैक्सीन तो 10 साल बाद आएगा, तो हम क्या सब घर पे बैठे रह जाएंगे क्या। उसके पहले लोगों को लगता था कि जैसे यहाँ पे कुछ बैंकें डूब गई तो लोगों को लगता था कि भाई सारा पूरा फाइनेंशियल सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा, इस तरीके का। तो ये तो पिछले 30-35 साल 50 साल हिस्टोरिकली आप देखो ना, जैसे मैं भी 25 साल से घूम रहा हूँ, तो जब भी जहाँ पे भी कहीं भी जाओगे ना, तो हमेशा कोई ना कोई डिस्कशन का टॉपिक रहता ही है कि मार्केट क्या लग रहा है, कि क्या लग रहा है, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा। तो पॉइंट क्या है कि भाई रिस्क तो मार्केट में नहीं होता है, रिस्क अपने पोर्टफोलियो में होता है। मार्केट में तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। मार्केट तो मार्केट है, इसीलिए तो मार्केट बोलते हैं उसको। मार्केट में तो हमेशा कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, रिस्क मार्केट में से नहीं आता है। आप ये मान के चलोगे मार्केट में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, और आप ये मान के चलोगे मार्केट अनसर्टन है, और आप ये मान के चलोगे मार्केट में कुछ ना कुछ खराब कभी न कभी हो ही सकता है। अपने को तो ये देखना है कि भाई मार्केट में अगर कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो होगा या कुछ चीज़ें होंगी तो अपना पोर्टफोलियो उसको झेल पाएगा या नहीं झेल पाएगा, अपने को तो उस पर ध्यान सही देना चाहिए। तो मैंने देखा कि लोग मार्केट की चिंता ज़्यादा करते हैं, पोर्टफोलियो पे ध्यान नज़र कम रखते हैं। जैसे आप भी अगर क्लाइंट को एडवाइस करेंगे कि भाई हमने तो ये सोच के पोर्टफोलियो बनाया था, अब अपना इतना रिटर्न बन गया, थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लो, तो क्लाइंट बोलेगा कि नहीं बढ़िया चल रहा है, क्या ज़रूरत है, राइट। अगर आप बोलेंगे कि अपने को पोर्टफोलियो बैलेंस करके चलना है, तो क्लाइंट बोलेंगे कि नहीं स्मॉल कैप करेंगे ना, अपने को ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मैं हमेशा ना एक लाइटर नोट जोक के तौर पे मजाक में बोलता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी बताया मेरा बेटा 5 साल का है, राइट। तो बच्चों को ऑब्जर्व करेंगे ना तो एक सीखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो समझो नॉर्थ ईस्ट से, जो घर के स्टाफ है जो भी है, तो लोग बहुत तीखा खाते हैं। अब मेरे बेटे को पसंद है नूडल्स, तो कभी कभी देते हैं उसको नूडल्स। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टाफ है ये लोग भी नूडल्स खाते हैं, लेकिन आपको पता है मोमोज या नूडल्स कब खाते हैं तो लाल कलर का पूरा, मतलब बहुत मसाला, बहुत तीखा होता है। तो बचपन के मेरे सन का वीडियो है, उसने उनसे नूडल्स मांगा, तो उन्होंने बोला बेटा ये बहुत तीखा है मत खाओ। तो उसने फिर भी रोया, चिल्लाया, पीटा, तो खिलाया थोड़ा। अब जैसे ही उसको वो तीखा नूडल्स खिलाया और रोना चालू, तो उसे ले लिया प्लेट वापस के, भाई तुमको बोला था। तो वो नहीं बोल रहे, नहीं दो खाऊंगा मैं। अच्छा। तो वो वीडियो में क्या है कि वो खा भी रहा है और रो भी रहा है। ओके।
मतलब तीखा खाना भी है, हाँ लेकिन तीखा लग रहा है तो रोना भी है। तो ये ऑब्वियसली हम मेरे बेटे को डिस्कस करने नहीं आए, ये इन्वेस्टर्स का भी थोड़ा ऐसा ही ऐसा है कि भी भाई है। मार्केट की चिंता भी है, हाँ लेकिन पैसा भी ऐसे लगाना है कि भाई नहीं हमको तो 30% रिटर्न चाहिए। सही बात। सो क्या है कि मार्केट की चिंता भी करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट भी ऐसा करेंगे कि फुल्ली रिस्की। तो मार्केट की चिंता कम करो और इन्वेस्टमेंट ऐसे करो जैसा आपका एडवाइजर आपको आपका रिस्क प्रोफाइल भांप के या एनालाइज करके जो आपके एडवाइजर आपको बताते हैं या आपके वेल्थ मैनेजर आपको बताते हैं, पोर्टफोलियो वैसा बनाओ। आप मार्केट की चिंता भी करते हो, मनमानी भी करते हो, फिर कैसे होएगा? सो इसलिए मैंने एग्जांपल दिया कि भाई तीखा भी खाना है और रोना भी आ रहा है, तो वो तो नहीं चलेगा। सही बात। तो ध्यान पोर्टफोलियो पे होना चाहिए। पोर्टफोलियो हर तरीके का मार्केट सिनेरियो हैंडल कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अपनी जरूरतों पे ध्यान रख ले, उस पे यस, जिंदगी वही इंपॉर्टेंट है। यस, अपने रिक्वायरमेंट्स पे ध्यान रखिए, उसमें रिस्क कितना उस पर ध्यान रखिए। मार्केट का क्या है, हमेशा कुछ ना कुछ मेला लगा रहेगा मार्केट में। जब तक समुद्र में बहाव आते रहे ऊपर नीचे होते रहेंगे तब तक मार्केट भी ऊपर नीचे चलता रहेगा, चलते रहेगा। दैट इज द नेचर, दैट इज द नेचर ऑफ द मार्केट। एकदम सही कह रहे हैं। और एक और जो क्वेश्चन निवेशक कई बार पूछते हैं कि आशीष जी बेस्ट फंड एडवाइस करो, बेस्ट फंड एडवाइस करो। तो ये बेस्ट फंड का जो एक वो एक ना बचपन से हमने बेस्ट सीखा है, बेस्ट स्कूल, बेस्ट टीचर, बेस्ट ये बेस्ट वो, तो ये बेस्ट फंड क्या बेस्ट रिटर्न दे देता है निवेशक को? ऐसा हुआ है? और बेस्ट फंड कैसे क्या करें? सो मेरे को लगता है कि बेस्ट फंड की परिभाषा ही ये है, क्योंकि देखिए बेस्ट फंड तो हर महीने हर हफ्ते चेंज होते रहता है। तो मेरे को लगता है परिभाषा ये है बेस्ट फंड की, भाई जो पिछले एक साल में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया, और हर जगह पे आप सोशल मीडिया में या जिस प्लेटफॉर्म में या डिजिटल में या यूट्यूब में हर जगह जिसका जिक्र सुनते हो, वही सबके माइंड में रिकॉल में आ जाता है, वही हर जगह नंबर 1 दिखता है। लेकिन 2 चीज़ देखना चाहिए कि भाई कोई फंड नंबर 1 या बेस्ट कैसे बनता है, क्योंकि मार्केट में तो हज़ारों स्टॉक लिस्टेड है। जैसा हमने बताया मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ मेला लगा रहता है, कुछ चल रहा है कुछ नहीं चल रहा है। अब समझो कि हंड्रेड्स ऑफ फंड्स हैं, कोई एक फंड बेस्ट कैसे बन जाता है जब उसके पोर्टफोलियो में वही चीज़ें हैं जो मार्केट में फिलहाल चल रही हैं। और कोई वर्स्ट कैसे हो जाता है जब उसके पोर्टफोलियो में वही है जिसमें मार्केट में भाई अभी रुझान नहीं है, मतलब नहीं चल रहा है, राइट? तो मार्केट है। आप देखिए हर दूसरे साल बेस्ट वाला वर्स्ट हो जाता है, वर्स्ट वाला बेस्ट हो जाता है। तो मार्केट में तो विनर्स रोटेट इस तरीके का चलते रहता है। तो बेस्ट का तो कोई अंत नहीं है। और आप जो बेस्ट लेंगे ना, आप समझ लोगे भाई 2 साल के बाद वो जाने वाला है नीचे, और अभी जो गड्ढे में वो आने वाला है ऊपर। तो बेस्ट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। एक्चुअली अपने को ये देखना है कि भाई जैसे पहले भी क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि भाई अपने लिए क्या रेलेवेंट है, अपने लिए क्या सूटेबल है। भाई मेरे पोर्टफोलियो के लिए मतलब आप आइडियल फंड के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट फंड का तो कोई डिस्कशन ही नहीं है, क्योंकि बेस्ट और वर्स्ट तो चलता रहेगा, इट्स अ साइकिल। बेस्ट दवाई नहीं है, जो आपको तकलीफ हो उसकी बात करो। एग्जैक्टली, हाँ। वैसे तो बेस्ट दवाई मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, राइट? सो पीपल हैव टू सी व्हाट इज राइट फॉर देम, नॉट द बेस्ट। फंड्स की बात आगे बढ़ाते हैं। ये एक मल्टी एसेट कैटेगरी एक नई चीज उभर कर आ रही है, उसके अलग बात भी हो रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? एक्चुअली वैसे तो अगर आप देखें तो लोगों को अपना पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन के साथ ही करना चाहिए, जो उनके एडवाइज़र वेल्थ मैनेजर उनको जो बताते हैं वैसे ही पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। लेकिन क्या है कि हर समय लोग वो एसेट एलोकेशन की एडवाइस उसको डिसिप्लिन तरीके से फॉलो नहीं कर पाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि टैक्सेशन के भी कंसिडरेशन आ जाते हैं, क्योंकि आप चाह कर भी अगर एसेट एलोकेशन बढ़िया से बढ़िया करें कि भाई पैसा डेट में लगाएं, गोल्ड में लगाएं, इक्विटी में लगाएं, तो हमारा टैक्स सिस्टम ऐसा है कि भाई इक्विटी डेट के ऊपर पूरा टैक्स लगेगा, गोल्ड पे कुछ अलग टैक्स लगेगा, इक्विटी पे कुछ अलग टैक्स लगेगा, और कुल मिला के टैक्स एफिशिएंसी भी उसकी कम हो जाएगी। प्लस एग्जीक्यूशन के चैलेंजेस, आप बोलेंगे कि भाई अभी यहाँ से निकाल के यहाँ डाल दो, फिर क्लाइंट बोलेंगे हम बाहर है, अगले हफ्ते मिलते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि प्री पैकेज प्रोडक्ट जो है जिसमें एसेट एलोकेशन का पूरा ध्यान रखा जाए और फंड अपने आप ही ये डेट है, गोल्ड है, इक्विटी है, इसको रीबैलेंस कर ले, तो वो बहुत बढ़िया सुविधा है, क्योंकि एग्जीक्यूशन के कोई चैलेंजेस नहीं है। एक से दूसरे में स्विच करेगा तो आपको बार बार कुछ साइन करना, ट्रांजैक्शन करना ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है तो टैक्स भी नहीं लगेगा। और जिस तरीके से हमारा टैक्स स्ट्रक्चर है फ़िलहाल, अगर आप एक मल्टी एसेट फंड जिसमें समझो 25% गोल्ड, 25% इक्विटी और 50% डेट है समझो, तो 25% इक्विटी की वजह से वो 50% डेट और गोल्ड उसका भी टैक्सेशन नीचे आ जाता है। अच्छा, गोल्ड और इक्विटी अपने आप को अच्छे से काउंटर बैलेंस करता है, वॉलेटिलिटी भी कम करते हैं।
तो इक्विटी पार्टिसिपेशन विद लो वॉलेटिलिटी, मोर एफिशिएंसी ऑन द टैक्सेशन, कुल मिला के बहुत बढ़िया कैटेगरी है। और क्या है कि प्योर डेट में अगर पैसा लगाना है तो अभी ऑप्शंस कुछ बचे नहीं है, क्योंकि डेट में पूरा टैक्सेबल हो गया, प्लस इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए। तो डेट या डेट के ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस जो हैं वो इस तरीके से एक हाइब्रिड मल्टी एसेट स्ट्रक्चर में बेटर सूट करता है। कन्वीनियंस, टैक्सेशन और डेट का ऑप्शन ही नहीं है, तो यही एक तरीका बचता है कि आप हाइब्रिड फंड्स में करें। So it's a very good kind of fill it, shut it and kind of forget it kind of. एब्सोल्युटली, मतलब पैसा लगा के अगर आप भूल जाएं, लो वॉलेटिलिटी के साथ हाई सिंगल डिजिट, लो डबल डिजिट, इस तरीके का लॉन्ग टर्म एवरेज रिटर्न और लो वॉलेटिलिटी, उसके लिए बहुत बढ़िया एक पैकेज सोल्यूशन आप बोल सकते हैं। Absolutely, बहुत सही। See, as a manufacturer, आपके पास अलग अलग रूट से पैसा आता है। You get money through direct platforms, आपकी वेबसाइट पे आके लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी आते हैं, एडवाइजर के थ्रू भी आते हैं। सो इन सब में आपने क्या रुझान देखा है, किस तरह का, इज दैट द कलर ऑफ द मनी सेम फॉर एवरीथिंग, या व्हाट इज योर स्टडी ऑन द डायरेक्ट मनी एंड द एडवाइस मनी? देखिए क्या है, जाहिर सी बात है कि भाई जितने लोग भी डायरेक्ट, मेरा मतलब है कि सेल्फ मेडिकेट करने वाली बात हो गई, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप डायरेक्ट नहीं करिए, लेकिन डायरेक्ट अगर कोई करता है तो इसका अनुमान ये होना चाहिए कि भाई इनको सब पता है। क्योंकि डायरेक्ट जो आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था बेस्ट फंड का, तो डायरेक्ट में ये ज़्यादा हमने होता हुआ देखा है कि भाई समझो कि हमारे बारे में कोई जानता नहीं है, या किसी फंड हाउस या किसी स्कीम के बारे में कोई जानता नहीं है, अब सडनली समझो कि वो नंबर 1 पे आ गया, तो उसी को लोग समझेंगे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बेस्ट फंड है ये। अब क्या है कि ये जो मैंने बताया नंबर 1 तो चेंज होते रहता है, तो अक्सर ऐसा देखा गया है, जो भी इंडस्ट्री का डेटा छपता है, जो भी रिसर्च हम करते हैं, उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि डायरेक्ट का जो रुझान है वो हमेशा पिछले 1 साल, पिछले 2 साल या पिछले 6 महीने में जो सबसे टॉप में आता है वो उनको आकर्षित करता है। लेकिन आप जानते हैं कि भाई ये तो फिर चेंज हो जाएगा, तो उसमें ये इस तरीके के हादसे होने का बहुत चांस है कि भाई इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है व्हिच सेज यू हैव टू शूट वेयर द रैबिट विल बी। सही बात, राइट। अभी यू आर ऑलवेज शूटिंग वेयर द रैबिट वाज लास्ट ईयर, क्योंकि आप जब देख रहे हैं कि ये नंबर 1 है, तो भाई वो नंबर 1 परफॉर्मेंस तो उसको मिला ना जिसने पिछले साल इन्वेस्ट किया था और अब वो नंबर 1 दिख रहा है। अब आप ये नंबर 1 देखने के बाद करोगे तो आपको टॉप रिटर्न मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सिक्लिकलिटी चलती है। तो आई थिंक ये डायरेक्ट जो है वो सेल्फ मेडिकेट करने वाली चीज़ है। सेल्फ मेडिकेशन में ऐसा अजम्पशन होना चाहिए कि भाई आप भी डॉक्टर है, आपको समझ में आ रहा है आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट जो है बहुत कॉम्प्लेक्स और पेचीदा चीज़ है। और इससे क्या होता है कि भाई फंड जब टॉप पे होता है पैसा आता है, फिर उसके बाद वो जब टॉप पे नहीं रहता है तो पैसा निकल जाता है और चर्न और इस तरीके की चीज़ें होती है, फिर इससे कंपाउंडिंग की जर्नी ब्रेक हो जाती है। आप फिर से सही समय पे एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे, फिर सही फंड पकड़ेंगे नहीं पकड़ेंगे, ये सब काफ़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। अगर आप एक एडवाइज़र या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ या वेल्थ मैनेजर के साथ काम करते हैं तो क्या है कि कम से कम आपको एक साउंडिंग बोर्ड मिलता है। पहले तो भाई जो आपको रिकमेंडेशन मिलेगा वो आपकी नीड्स को ध्यान में रखते हुए मिलेगा, पहली बात। दूसरी बात, एक साउंडिंग बोर्ड या एक थर्ड पार्टी मिलेगा। और मेरा तो हमेशा ये मानना है कि भाई अगर आप मेरे ऑफिस में आएंगे एज अ डायरेक्ट इन्वेस्टर, आप मेरे ऑफिस में आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है मैं तो आपको ये बोलूँगा ना मेरा फंड हाउस बेस्ट है। सही बात, राइट। हमारे ऑफिस में तो आपको हमारे बारे में सुनने को मिलेगा। अगर आप नेबर के ऑफिस में जाएंगे तो वो बोलेगा वो बढ़िया है। राइट। तो अब तो थर्ड पार्टी है, समझो कि कोई आपके पास आता है एज अ वेल्थ मैनेजर, तो आपके पास तो कम से कम 3, 4, 5 अलग चीज़ों के बारे में सुनने को मिलेगा। सो जैसा भी है, थर्ड पार्टी इज ऑलवेज बेटर देन डीलिंग डायरेक्टली विद दी मैन्युफैक्चरर। राइट। कई बार आप देखिए लोग एक कंपनी के गाड़ी के शोरूम में चले गए, वो आपको ऐसा ऐसा बता देगा कि भाई इससे अच्छी गाड़ी तो दुनिया में बनी नहीं है। अब वहाँ से निकल के दूसरी कार के शोरूम में जाएंगे, वो आपको कन्विंस कर देगा भाई यही बेटर है। राइट। अब आप देखने जा रहे हैं माइलेज, आपको चाहिए गाड़ी जो आप खुद चलाने वाले, ड्राइवर नहीं चलाने वाला है, तो उसके अलग गाड़ी है। कोई दूसरा है जिसको माइलेज की परवाह नहीं है, गाड़ी ड्राइवर चलाने वाला है, उसको खुद को पीछे बैठना है, तो उसके लिए अलग रिक्वायरमेंट है। सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। लेकिन आप कई बार देखिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सारी गाड़ियों की कंपैरिजन होती है और कोई बताता है कि भाई ये ऐसा है, ये ऐसा है। लोग यूट्यूब पे ढूंढते हैं। ये सब क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि उनको थर्ड पार्टी चाहिए। तो थर्ड पार्टी तो इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट में एक थर्ड पार्टी को पूछना बहुत ही ज़रूरी है।
क्योंकि उसी से आपको रियल व्यू मिलेगा कि भाई आपके लिए क्या रेलेवेंट है आपकी जो रिक्वायरमेंट्स के लिए. सो आई थिंक इन्वेस्टमेंट की स्टिकीनेस जो हमने बोला लॉन्ग टर्म चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, वो एक वेल्थ मैनेजर आपके साथ होगा तो लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन सब रहेगी. वरना तो आप मनमानी करते रहेंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा आप मनमानी कर रहे हैं. समवेयर आप जो कह रहे हैं वो लगता है कि इन्वेस्टमेंट कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता. जैसे आपने अपने बच्चे की बात करी, इन्वेस्टमेंट शायद जनरेशनल होता है, बहुत लंबे समय के लिए चीजें होती हैं. तो कई चीजें होती हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होता, वो भी शायद आपको इट इज दी जो वेल्थ मैनेजर है वो आपके इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेशनशिप बनाता है. आप खुद वो रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर सकते. अगर आप खुद करने की ट्राई करेंगे तो आपके लिए ट्रांजैक्शनल रहेगा. भाई ये इन्वेस्टमेंट मैंने लिया, ये ठीक नहीं है, ये निकल गया, ये ऐसे हो जाएगा. It's very difficult to understand and form relationship with a investment. So you need a wealth manager who will help you form association and form relationship with the investment, and then make you hold on to it. That is very important. yes. और देखिए पिछले 3-4 साल में खासकर कोविड के बाद में मैं एक निवेशक मेरे पास आए थे और वो बोले कि इज ए रिटायर्ड इन्वेस्टर, बोला आशीष जी मुझे है ना एक 40% रिटर्न नहीं चाहिए. 30-40 लोग बात करते हैं आजकल. आई एम वेरी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर और मेरे को तो 20% ही चाहिए. तो ये जो पिछले 3-4-5 सालों में 20-30-40% के लोग बातें करने लग गए हैं, अब ये कहाँ तक जायज़ है? व्हाट शुड बी द पीपल एक्सपेक्टेशन बी इन नेक्स्ट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की बात है, पीछे की नहीं है. सो व्हाट इज योर एस्टिमेट और व्हाट डू यू थिंक प्रॉब्ली पीपल शुड हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इक्विटी मार्केट? लंबे अरसे में, जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, लंबे अरसे में अगर आप देखें पिछले 32 साल में जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो जीडीपी है, तो नॉमिनल जीडीपी 12.5% कंपाउंडेड है. सेंसेक्स की कंपनियों का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ भी 12.5% कंपाउंडेड है. और लंबे अरसे में सेंसेक्स का अपना कंपाउंडिंग 12-12.5% प्लस डिविडेंड यील्ड तो 14% के आसपास है. और आगे जाकर भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 10-12% रहेगी. करेक्ट. तो जिस रफ्तार से जीडीपी ग्रो होती है, स्वाभाविक सी बात है कि उसी रफ्तार से पब्लिक सेक्टर और बड़ी बड़ी कंपनियां भी ग्रो करेंगी. अब आर्थिक व्यवस्था में हमेशा कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जो एवरेज जीडीपी ग्रोथ से बेटर कर रहे हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होंगी जो अपने सेक्टर के एवरेज से बेटर कर रहे हैं. तो वही तो सब हम चुनने की कोशिश करते हैं. तो अगर हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10-12% चल रही है और हम चुनिंदा कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर इकोनॉमी का ग्रोथ 10-12% है तो इन कंपनियों का ग्रोथ 14-15% होगा. सो लंबे अरसे में मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को यही देखना चाहिए कि भाई अगर लंबे अरसे में मेरा इक्विटी पोर्टफोलियो कभी 4 साल में, कभी 5 साल में, कभी 6 साल में डबल हो रहा है, राइट, तो उस एनीवेयर बिटवीन 4 to 6 years इफ़ योर पोर्टफोलियो इज डबलिंग, उस रन रेट पे अगर चल रहा है तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप. क्योंकि सीधी बात है कि भाई जिस रफ्तार पे कंपनियों का मुनाफा नहीं ग्रो हो रहा है, जिस रफ्तार से कंपनियों का बिजनेस भी नहीं ग्रो हो रहा है, उस रफ्तार से आपका पोर्टफोलियो कैसे ग्रो करेगा? ये 20-25% रिटर्न कब आता है? थोड़े समय के लिए अगर बहुत ही बिलो एवरेज रिटर्न आया तो आगे जाके कहीं ना कहीं पे अबव एवरेज आएगा. तो पिछले 3 साल में यही हुआ है कि भाई उसके पहले रिटर्न्स थोड़े कम थे, पिछले 3 साल में अबव एवरेज आ गया, तो अब हम लोग एवरेज के साथ ही चल रहे हैं. तो यहाँ से किसी को भी यही देखना चाहिए कि कभी 4 साल में, कभी 6 साल में पैसा डबल होता है, वही रन रेट सस्टेनेबल भी है. राइट. अगर 4 साल में डबल हो गया तो आप अबव एवरेज चल रहे हैं, 6 साल में हुआ तो आप एवरेज के साथ चल रहे हैं. तो यही देखना चाहिए. अगर 20-30% रिटर्न आ रहा है थोड़े समय के लिए तो आप समझिए आप नसीबदार हैं, अच्छा हो गया आपके लिए. लेकिन वही एक्सपेक्टेशन के साथ चलना वो तो ठीक नहीं, वो फ्यूचर नहीं है, वो तो ठीक नहीं रहेगा. वो फ्यूचर. यस, सही बात है. हम बहुत बार फंड रिटर्न के बारे में देखते हैं, स्कीम रिटर्न क्या आ रही है, ये सब बातें हो रही है, और निवेशक हमेशा ही पूछता है कि रिटर्न कितना मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा. पर एक चीज होती है, निवेशक कितना कमाता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड व्हाट इज एन इन्वेस्टर रिटर्न. जी, ये होता क्या है? एक्चुअली ऐसा देखा गया है कि भाई लंबे अरसे में, जैसा मैंने बताया कि पिछले 32 साल से सेंसेक्स की कंपाउंडिंग हर 5 साल में हो रही है, मतलब 5 साल में डबल 14%. बट ये बात भी सही है आशीष जी, आप भी जानते हैं कि हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ऐसे लोगों को मिलते नहीं है जो कायदे से कॉन्फिडेंटली अपने को बोल दे आप सही बोल रहे हो, मेरा हर 5 साल में डबल हुआ है. ऐसे क्यों नहीं मिलते लोग? क्योंकि भाई ये तो सेंसेक्स का ही रेट है. मैंने ऐसा कोई कमाल तो करनी, मैं कोई आपको बेस्ट परफॉर्मिंग फंड वगैरह की तो बात कर नहीं रहा हूँ, तो सेंसेक्स ही है भाई. जिसको कुछ नहीं पता है वो कम से कम इंडेक्स तो खरीद ही सकता है, या कुछ ब्लू चिप कंपनियां तो खरीद ही सकता है.
तो इतनी कॉमन नॉलेज होने के बाद भी, इतनी कॉमन इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी होता क्यों नहीं है? वाई इज इट कि इट इज नॉट कॉमन टू फाइंड पीपल हुज मनी डबल्स एवरी 4-5 years? ऑल्दो मार्केट इज डबलिंग एवरी 4-5 years, ग्राउंड पे लोग नहीं है। बट ग्राउंड पे क्यों लोग नहीं है? वो इसलिए है क्योंकि भाई जो रिटर्न हम लोग कोट करते हैं कि भाई हमारे फंड ने इतना बढ़िया किया, उसका इस तरीके से रन रेट हुआ, हमारा इंडेक्स ने इतना किया, ये सब क्या है? अनफॉर्चुनेटली इन्वेस्टर जो बिहेवियर है उसी भाई क्या होता है कि जब मार्केट ऊपर में होता है तो लोगों को लगता है तो ऐसे ही चलेगा, तो बहुत पैसा डालते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि 2020 में जब ग्रीडी होना चाहिए था, लोग फियरफुल थे, तब लोग निकाल के भाग रहे थे। 2021 में जब मार्केट पीक पे पहुंचा तो लोग अमृतकाल की बात करके पैसा डाल रहे थे। तो जब पैसा जब ज़्यादा लगाना चाहिए तब लोग निकाल रहे होते हैं, पैसा जब निकालना चाहिए, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, एसेट एलोकेशन रीबैलेंस करना चाहिए, तब लोग और ज़्यादा पैसा एग्रेसिवली लगा रहे होते हैं। तो मैंने देखा है कि लोग पैसा तब सबसे ज़्यादा लगाते हैं जब उनको मार्केट के बारे में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बुलिशनेस होती है। लेकिन भाई सवाल ये है कि आपको मार्केट के बारे में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बुलिशनेस कब होती है? जब आपका पास्ट रिटर्न बढ़िया दिखता है, 20-30% दिख जाता है। अब वहाँ से तो वो नीचे की तरफ एवरेज करने वाला है। लोगों को मार्केट में कॉन्फिडेंस और बुलिशनेस कब नहीं होता है? जब पास्ट रिटर्न खराब होता है। अब वहाँ से तो वो एवरेज ऊपर की तरफ जाने वाला है। तो गलत समय पे एंट्री लेना, गलत समय पे निकल जाना, लंबे अरसे के लिए नहीं रुकना, डिसिप्लिन नहीं रखना, संयम नहीं रखना, ये सब चीज़ों की वजह से होता है कि भाई मार्केट तो चल ही रहा है उस रफ्तार से, लेकिन लोग गलत टाइम पे चढ़ रहे, गलत टाइम पे उतर रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम है। जैसे कई बार आप ट्रेन में देखते हैं ना, जब ट्रेन खड़ी है तब किसी को नहीं चढ़ना है, जब ट्रेन आखिरी सीटी मारती है तब लोगों को भागते हैं, सब भागते हैं। सही बात। और मैं भी बॉम्बे आया हुआ हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जयपुर में भी ये है, यंगस्टर लोग हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, लोग रिटायर होना चाहते हैं जल्दी, परेशान हो गए। एंड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फायर, जो आजकल बहुत प्रचलित हो रहा है और खासकर सोशल मीडिया में प्रचलित हो रहा है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, योलो कल्चर, फायर कल्चर, एक तरफ आदमी योलो की बात कर रहा है, यू ओनली लिव लाइफ वंस, एंड रील्स आती हैं, आप यहाँ घूमने जाओ और वैसा करो, पैसे बचाने की क्या जरूरत है, और एक तरफ बात आती है फायर, रिटायर अर्ली, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, रिटायर अर्ली। अब हाउ डू आई बैलेंस इट आउट? मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा मुझे करना क्या, मुझे योलो जीना है, मुझे फायर जीना है, मुझे क्या करना है? एक्चुअली थोड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन भी है इसमें, क्योंकि जब हम यंग लोगों से बात करते हैं या आजकल जिस तरीके से हम चर्चा करते हैं, तो एक तरफ हमको ये बताया जा रहा है, 2-3 चीज़ें मैं रीड करता हूँ, जो मैं समझता हूँ। एक तरफ हमको बताया जा रहा है कि भाई आगे जा कर के हमारी करेंसी में डॉलर रहेगा कि नहीं रहेगा, रुपये का क्या फॉर्म एंड शेप रहेगा, क्या हम क्रिप्टो करेंसी में डील किया करेंगे या कोई नई करेंसी आएगी या फिर से गोल्ड का चलन आ जाएगा। फिर दूसरी तरफ हम सुनते हैं कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इससे काफ़ी करियर्स चेंज हो जाएंगे, काफ़ी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएगी, जो चीज़ों में हम दिमाग लगाते हैं वो मशीन किया करेंगे, हमको कुछ और काम करना पड़ेगा। फिर मैं सुनता हूँ कि भाई पहले तो लोग 30-30 साल एक ही करियर में निकाल लेते थे, आगे जाके आने वाले समय में लोगों को एक करियर में अलग अलग सब करियर सीखने पड़ेंगे। तो कुल मिला के मैं ये सुनता हूँ, और हमेशा अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे ना, तो इट इज़ ट्रू कि भाई फ्यूचर इज़ ऑलवेज फास्टर एंड फ्यूचर इज़ ऑलवेज अनसर्टन। तो एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि भाई फ्यूचर की अनसर्टनटी, फ्यूचर फास्ट, ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये सब चीज़ें जब हो रही है, तब कैसे मैं डिसाइड करूँ कि भाई इतना पैसा काफ़ी है, वो भी इंडियन रुपी एज अ करेंसी है, US डॉलर एज अ करेंसी में इतना रुपया काफ़ी है, और ये लेकर के मैं 45 साल की आयु में रिटायर कर लेता हूँ। ये कैसे हम लोग, हाउ डू वी रिकनसाइल विद दिस? दूसरी तरफ मैं ये भी सुनता हूँ कि भाई इस तरीके का रिसर्च चल रहा है कि किडनी भी लोग लेबोरेटरी में ग्रो कर देंगे 2035 तक। हाँ, राइट। फिर न्यूरालिंक की बात चल रही है, जैसे अभी हमारे पास फ़ोन है, फ़ोन के बिना हम रह नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं पे ह्यूमन बीइंग एनहांस्ड विद ए कंप्यूटर विच इज़ इन योर फोन। अब बोल रहे कि भाई न्यूरालिंक आ जाएगा, हम सबके बॉडी में एक चिप होएगा जो अपने आप ही क्लाउड को और इंटरनेट को और सैटेलाइट्स को कनेक्ट कर लेगा और सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो बोलने वाली बात क्या है कि भाई इतनी इस कदर टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, दुनिया इस कदर चेंज हो रही है, भाई मैं तो चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से अपने आप को रेलेवेंट रखूँ, और जब तक मेरा दिमाग और हाथ पैर चलते हैं तब तक मैं काम करते रहूँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि मैं कब ऑब्सोलीट या मतलब दुनिया कब अपने को रिटायर करने को फोर्स कर देगी, अपने पता नहीं है। तो तब तक, जब तक चल रहा है तब तक
करते रहो, चलाओ और अपने आप को रेलिवेंट रखो। तो क्या है कि ये बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शंस है। इस तरीके के कॉन्ट्रडिक्शन में कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली की बात कैसे कर सकता है, मुझे तो वो ऑड लगता है। और दूसरा डिफिकल्ट लगता है एक्चुअली। लोगों का अपनी सोच है, तो मुझे डिफिकल्ट। और लाइफ स्पैन, अभी जो लोग 25-30 साल के, ऐसा माना जाता है कि आज जो लोग 25-30 साल के हैं उनकी एवरेज उम्र 100 तक जाएगी। साइंस उनको मरने नहीं देगा। हाँ, साइंस मरने नहीं देगा उनको। तो यार 45 साल में रिटायर हो जाएंगे तो आगे 55 साल और बचा है, फिर करेंगे कैसे? और इतने सारे उथल पाथल, इतने सारे टेक्नोलॉजी के चेंजेस, फाइनेंस के चेंजेस। तो मेरे को लगता है कि एटलीस्ट मैं तो नहीं होऊंगा रिटायर, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है, तो मुश्किल है। इनफैक्ट आपने डॉक्टर की, मेडिकल की बात करी, मम्मी कई बार बोलती है मुझे, बोले आशीष, बोले दुनिया ऐसी हो गई है कि सिजेरियन के बिना आते नहीं है और वेंटिलेटर पर जाते नहीं है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल में ही आप है ना वो, और लाइफ स्पैन इसलिए शायद बढ़ रहा है। प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन। So, I would say one of the most, जिसे कहते हैं दिल से बात आपने करी है, बहुत अच्छा लगा। And I have learned so many things, many things that I will take it forward and I'll try and copy and I'll try and paste it somewhere and all those things. And I'll probably listen to this podcast many times for my own development. Now, last final piece of your, maybe concluding from all Amrit Kaal and all SIPs and all advisor or DI or whatever that you so called. So what is that message when you want to conclude? See, मैसेज मेरे को ऐसा 2-3 चीज़ मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो ऐसा स्टार्टिंग में हमने बात किया कि भाई आपको कंसिस्टेंट रहना है और पार्टिसिपेट करना। देखिए आर्थिक व्यवस्था में कंट्रीब्यूट तो आप करेंगे, पार्टिसिपेट कैसे करेंगे? राइट। पार्टिसिपेट करने के लिए निवेशक होना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट। और हर सेक्टर में तो आप अपना कारोबार कर नहीं सकते हैं। तो आपको अगर आर्थिक व्यवस्था में आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है तो हर सेक्टर में पार्टिसिपेशन भी आपका होना चाहिए, और पार्टिसिपेशन में निवेशक होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, निवेशक, सक्सेसफुल निवेशक होने के लिए लॉन्ग टर्म, कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, ये इम्पॉर्टेंट है। एक कोई आपका मार्गदर्शक होना चाहिए जो आपको रखेगा। जैसे मैंने बताया, आपका इन्वेस्टमेंट के साथ आपका रिलेशनशिप केवल ट्रांजैक्शनल नहीं रहे बट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रहे और आपका इन्वेस्टमेंट आपके लिए फूले फले, तो उसके लिए एक मार्गदर्शक और थर्ड पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट थिंग, मेरे को ऐसा लगता है कि सक्सेस के लिए ना, जो पहले में बात की कि भाई थोड़ा उल्टा, थोड़ा विपरीत थिंकिंग, थोड़ा कॉन्ट्ररी थिंकिंग, थोड़ा भेड़ चाल से अलग, उसके लिए थोड़ा ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। मेरे को लगता है कि सक्सेस के लिए ओपन माइंडेड होना बहुत जरूरी है। जो लोग बहुत ही श्योर होते हैं ना कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो ऐसा ही है, ये काला है, ये गोरा है। जैसे मैं 25 साल का था तो मेरे को सब क्लैरिटी थी। मैं 25 साल का था ना, तब मेरे को पता था कि भाई मेरे को सब पता है, राइट। लेकिन अभी 50 का होने लगा तो मेरे को पता है कि भाई मेरे को कुछ नहीं पता है। तो ओपन माइंडेड रहो, सीखो, दैट इज नीडेड फॉर सक्सेस। So this is from from Ashish Somaiya, who is CEO of White Oak. But now here, maybe I'll just ask out of the box question here. You are one of those CEOs who is whose temperament is different, who is a cool dude kind of personality, who speaks his heart out. As a CEO, आपके पास pressure भी होता होगा, but you don't seem to carry that pressure. So what's your life as a CEO? नहीं, एक्चुअली आई एन्जॉय वॉट आई एम डूइंग। आई एम कंफर्टेबल इन माई स्किन, आई एन्जॉय वॉट आई एम डूइंग। मतलब मेरे को लगता है मैं दूसरों को प्रेशर देता हूँ इसलिए मेरे पे प्रेशर नहीं दिखता है। नहीं, आई एन्जॉय वॉट आई एम डूइंग। एंड एक्चुअली सी, हम लोग का जो इंडस्ट्री है इसका एक बून है। उसका बून ये है कि मेरे को पता है, आप भी हैं इतने सालों से, 25 साल से, मैं भी हूँ यहाँ पे 25 साल से। हैंड ऑन हार्ट हमको पता है कि भाई वी हैव मेड अ डिफरेंस, राइट। मतलब अगर हम लोग बोलते हैं कि भाई आप ये लंबे अरसे में पैसा बनेगा, कुछ लोग तो हमारी बात सुनते हैं, और कुछ लोगों का तो लाइफस्टाइल या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फ्यूचर जनरेशन चेंज होएगा। तो अपना एफर्ट इज नॉट गोइंग इन वेन। तो क्या है कि बहुत सारा प्रोफेशन में बहुत सारा तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन कहाँ पे वेर यू कैन मेक अ रियल इम्पैक्ट, वेर यू कैन सी कि भाई कुछ चीज़ें चेंज हो रही है। आप 10 साल बाद किसी को मिलो तो वो बोलता है कि भाई 10 साल पहले आपने ऐसा बोला था, राइट। जैसे 2012 में हमने पूरा 2013 में एनालिसिस किया था, और एक ऐसा ना, एक फैंसी टर्म कॉइन किया था कि भाई सेंसेक्स विल बिकम, निफ्टी विल बिकम सेंसेक्स। क्योंकि 2012-13 में क्या था, सेंसेक्स का लेवल 20-22 हज़ार और निफ्टी का लेवल 5,000 6,000 इस तरीके का चल रहा था। तो हमने पूरा एनालिसिस करके कि भाई ग्रोथ आएगा तो कैसे बताएं लोग, हमने प्रेजेंटेशन किया भाई निफ्टी विल बिकम सेंसेक्स। अब
पिछले साल किसी ने मेरे को मेरा ही 2013 का प्रेजेंटेशन ईमेल किया कि बोला देखो ये आपने भेजा था। तो कहीं न कहीं पे क्या है कि अगर कोई थोड़ा भी सुन लेता है, क्योंकि ये विजन शेयर करने की बात है, और फिर उसको स्टिक करो कि भाई ये विजन है, उसको आप अमल में लाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो। सो आई थिंक इट्स वेरी एक्साइटिंग। Right. You have made difference in people's life. Yeah, I think so. Cute. Well, beyond that, how's your Thar? Now the learning experience है. नहीं तो मैं एक्चुअली आई लाइक ड्राइविंग। मतलब मोस्ट पीपल विल फाइंड इट सरप्राइजिंग दैट आई डोंट, माय फैमिली दे हैव ड्राइवर, आई डोंट हैव ड्राइवर। आई लव ड्राइविंग। आई स्टिल ड्राइव टू वर्क एवरी डे। आई ड्राइव माई सेल्फ, राइट। इवन इफ आई एम ट्रैवलिंग, मैं गाड़ी एयरपोर्ट पे रखते हूँ, फिर फ्लाइट लेता हूँ। बट हाँ, मैं ऑफ रोडिंग सीख रहा था एक्चुअली। जैसे इगतपुरी में महिंद्रा की ऑफ रोडिंग की एकेडमी है, तो इसीलिए मैंने ये थार गाड़ी ली। फिर मैं ऑफ रोडिंग के लिए गया, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे द मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर वाज बारिश में, जब पूरा एवरीथिंग इज, द ग्राउंड इज मकी, सो इट्स अ ऑफ रोडिंग ट्रैक। तो ऑफ रोडिंग ट्रैक में वैसे ही इतने सारे ऑब्स्टेकल्स, अप हिल, डाउन हिल, रॉक्स, कार टम्बल करती है, सब होता है। लेकिन रात को 12 बजे बारिश में वो बढ़िया एक्सपीरियंस था ऑफ रोडिंग करने का। Those are memories. ब्यूटीफुल मेमोरीज। सो ऐसे कुछ सीखते रहते हैं। Wonderful, wonderful. It was really, really wonderful talking to you, Ashish ji, and learning was multifaceted for me across everything. Storytelling, figures, कैसे बताना है, अपनी personal life के बारे में आपने बताया. It was really, really wonderful, and I'm sure audience, would take loads of information, loads of learning from this. Thank you so much, Ashish ji. Thank you. Thank you.